ब्रज धाम उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहाँ श्री कृष्ण और राधा की प्यार की कहानियाँ आज भी ब्रज की गलियों में गूंजती है। और हर साल होली के त्योहार के दौरान यही प्यार सब पर रंगों के द्वारा बरसाया जाता है। दुनिया भर से लोग ब्रज आते हैं और इस प्यार और त्योहार के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन एक सच। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन टॉकिंग ट्रैवल। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू सम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू द फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली। जी हाँ, होली इज ऑलमोस्ट हियर एंड आई नो कि हर साल अ लॉट ऑफ यू प्लान टू गो टू ब्रज की होली, क्योंकि ब्रज की जो होली होती है इज वन ऑफ द बिगेस्ट होली सेलिब्रेशंस दैट वी कैन एक्सपीरियंस इन इंडिया। जगह जगह से लोग आते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया but from across the globe. Internationally भी बहुत लोग आते हैं to come and celebrate Holi in its purest and the largest form possible, जो ब्रज में खेली जाती है। तो पिछले साल मैं भी ब्रज की होली मनाने गई थी ब्रज धाम में। और जब हम ब्रज कहते हैं द एरिया इज डिवाइडेड इनटू वृंदावन, मथुरा एंड नंदगांव। तो यहाँ पे तीनों जगह पे अलग अलग टाइप की होली खेली जाती है ऑन डिफरेंट डेज एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस वेरी वेरी अप क्लोज एंड पर्सनल। मैं उत्तर प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ गई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा। बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वुड love to come and address and especially to you women out there who are planning to go. I know कि आप बहुत सारे photos और videos देखते हो on the internet which show it in a very beautiful light, which no doubt it is, but there are a few things that you need to definitely keep in mind before you visit Braj ki Holi this year. So as much as the festival is celebrated in a very grand manner, year on year there is also a reportage about a lot of mishandling happening both towards women and men. कभी चोरी या कभी किसी भी तरह का negative reportage भी surround करता है, for the simple reason कि there is such large influx of people coming to celebrate this festival every year और इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है। So there are some very basic things that I want to address and very important things also that I want to address in this video, जो आपको ख्याल रखना चाहिए and just keeping these things in mind and being very mindful about these points that I'm going to address in this video will help you in so many ways because like I said, मैं personally गई थी, I've experienced it and I want to through my experience share these tips which will help you remain very very safe in this celebration and also keep your loved ones very safe. Okay, so first things first, यहाँ पे होली अलग अलग दिन में सेलिब्रेट की जाती है। Okay, so the first day is the लड्डू मार होली and this is much on a lighter side क्योंकि इस दिन पे होली as the name suggests obviously लड्डू मार के खेली जाती है। So as per the tradition, large crowds of people basically gather at the Radha Rani temple in Barsana और यहाँ पे जो मंदिर का छत होता है यहाँ पे a lot of devotees come, crowds of people, even you can go onto the top of the temple और आपको कुछ लड्डू दिए जाएंगे। तो लड्डू फेंके जाते हैं, पैकेज्ड लड्डूज होते हैं ऑब्वियसली, वो फेंके जाते हैं टू द डिवोटीज एज a means of celebration, love and in form of a prasad. तो ये होती है लड्डू मार होली। बट this one is fairly okay because this is day 1 और ये सिर्फ सूखे रंगों के साथ खेली जाती है। So there's no water involved here. There's a lot of laddus which are passed around as prasad and there is a lot of color and flowers, loose flowers that is just strewn around in the air and obviously you will be full of color क्योंकि when you walk through that crowd to maneuver yourself and go into the temple, तो रंग तो लोग डालते ही हैं। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं होता ब्रज में कि अगर आप कोई आपको जानता नहीं है तो आप पे रंग नहीं लगाएंगे। देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल बी कंप्लीटली full of color if you are in this entire area celebrating Holi because they believe कि होली का जो celebration है is equal for everybody and सब पे ही रंग डाला जाता है। But ladies especially make sure that if you have longer hair or even if you have short hair like mine, remember to tie your hair up in a bun so that it's very easy to take off the color later आपके पूरे बालों में रंग ना लगा हो। And an even better option would be to oil your hair. I know थोड़ा एस्थेटिक्स को किल कर देता है, यू मे लुक लाइक सम चंपू गोइंग, बट ट्रस्ट मी
एक बार आप वहां पहुंच जाओगे, दिस इज नॉट गोइंग टू मैटर, क्योंकि आप कैसे दिख रहे हो दैट्स नॉट गोइंग टू मैटर इन एनी वे. सो इफ यू ऑयल योर हेयर एंड फिर उसके ऊपर जब कलर चढ़ता है या कलर डाला जाता है, लूज कलर या जो कोरा रंग जिसे कहते हैं, इट्स वेरी इजी टू वॉश ऑफ लेटर. इट्स नॉट मच ऑफ अ हैसल. And also, of course, this goes without saying, but do carry extra pairs of clothes when you're going through this, entire few days of playing Holi in Braj, because आपके कपड़े खराब होने वाले. And make sure आप नए कपड़े ना खरीदो unless and until you're okay with getting the clothes dirty, because ये कपड़े गंदे होंगे. मेरे जो पिछले साल के white कपड़ों पे रंग लगा था वो आज तक नहीं निकला, despite having tried various methods. But so yeah, be mindful, carry different set of clothes to go. But the actual fun starts on the second day, जब खेली जाती है लठमार होली. And as the name suggests, yes, यहाँ पे लाठी से मारा जाता है. जो नंदगांव की औरतें हैं वो बरसाना के मेन को लाठी से मारती हैं, and then the reverse happens on the next day. So of course you will not be hit with the lathis, and this is also not painful or anything as it sounds. The men are very well secured on their heads with a shield, और उस पे लाठी मारी जाती है. But my point about bringing this forth is that ये जो second day की होली होती है, this involves a lot of color and a lot of water. तो पहले दिन पे जैसे मैंने बोला जस्ट रंग, on the second day it's going to be a lot of water. So whether somebody knows you or does not know you, whatever you're wearing, whatever gadgets you're carrying, nobody is going to be caring about that. आप जैसे ही राधा रानी टेम्पल पे पहुंचोगे to be part of the celebration and to see the celebration, there are chances that you are going to be thrown with not just like balloons of water, but like buckets of water. ये मेरे साथ भी हुआ था. And I understand that there is a very thin line when you're in such a crowded place as to what's acceptable and what is not. But I'm saying this in a positive light. In the spirit of playing Holi, everybody is poured with colored water. So make sure as a woman especially कि आप white कपड़े ना पहने. I know कि white पहनना बहुत aesthetic लगता है होली में, but try, because white कपड़े जब गीले होते they tend to get transparent. So make sure you're not wearing any other clothing, any other colored clothing also, which may get transparent once it gets wet, because there are very high chances that you will be drenched by the end of the day. And मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, but कलर पानी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है. So just be mindful of that. Again, keep your hair tied up. Also men, this is applicable for both men and women. Take care of yourself by oiling your hands and legs and your faces, ताकि रंग बाद में उतारना बहुत बहुत easy हो. Now ब्रज की होली के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको exactly कहाँ जाना चाहिए, कितने बजे जाना चाहिए, and how do you make the most of this festival? ये सवाल लेकर मैं भी जब पहली बार गई थी तब गई थी, बिकॉज ब्रज जो है उत्तर प्रदेश में आता है एंड इट्स अ वेरी लार्ज एरिया. सो जियोग्राफिकली ब्रज के अंदर आता है वृंदावन, मथुरा और नंदगांव, और ये तीनों ही जो गांव है, ब्रज ऑल्सो द होल एरिया इन जनरल इज specifically very famous for the love stories between Krishna and Radha. और आज भी आप अगर वहाँ पे उनकी गलियों में जाओगे तो कृष्णा राधा के आपको मंदिर दिखेंगे हर जगह पे, उनके पोस्टर्स होंगे या उनकी कोई ना कोई लव स्टोरी की कहानी कोई ना कोई कहीं से नरेट कर रहा होगा. यू कैन जस्ट सिट बाय लिसन. इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी देयर. इट्स लाइक बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन अ डिफरेंट ईरा. बट स्पेसिफिकली फॉर होली जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे आप नंदगांव और बरसाना में जा सकते हो. बरसाना में मेन राधा रानी टेम्पल है जहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट होता है. सो व्हेन आई से फंक्शंस, द होली स्टार्ट्स एट अराउंड 3 PM. दोपहर 3 से 4 बजे के बीच होली खेलना स्टार्ट होता है. तो पहले दिन होती है लड्डू मार होली, दूसरे दिन होती है लठमार होली, और इसके बाद देयर आर फ्यू मोर डेज जिसमें हुरंगे की होली है. देयर आर डिफरेंट जो एक स्केड्यूल होता है वो उत्तर प्रदेश टूरिज्म के पेज पे आ जाता है एवरी ईयर, जो अभी भी आ चुका है एज वी स्पीक ऑन देयर इंस्टाग्राम पेज. यू कैन गो चेक इट आउट देयर.
एंड अगर आप डिटेल में देखना चाहो कि लड्डूमार होली कैसी होती है, द होल सीक्वेंस बिफोर यू गो, एंड ऑल्सो लठमार होली, तो मैंने बहुत ही डिटेल वीडियोज लास्ट ईयर इस पे किए थे, सो मेक श्योर टू चेक दोज आउट। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बट अदरवाइज just to give you a fair idea, basically राधा रानी टेम्पल में I would suggest कि आप टाइम से थोड़े पहले जाओ, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। एक तो आपको उस भीड़ के बीच में पुश थ्रू करके जाना होता है टू रीच द टेम्पल, एंड देन वंस यू रीच द टेम्पल टू गेट द बेस्ट व्यूइंग स्पॉट ऑफ द मेन इवेंट, माई सजेशन कि आप उस टेम्पल के छत पे जाओ, वहाँ पे ऊपर देयर इज एन एक्सेस, आप सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हो, बट गो एटलीस्ट 2 hours prior to 3 o'clock, which is around 1 o'clock or so. आप अपना लंच वंच करके 12:30 भी पहुँच गए तो there is no issue, for the simple reason कि you will secure one of the best spots at the top of the temple, जहाँ पे से आप बैठ के पूरा माहौल देख सकते हो। And when I say माहौल, आप जब नीचे देखोगे राधा रानी टेम्पल का जो फ्लोर है, वहाँ पे मेन एक बैठक लगती है, एंड बैठक इज बेसिकली अ सेट ऑफ फ्यू मेन फ्रॉम आइदर बरसाना और फ्रॉम नंदगांव जो बैठे होते हैं, और दीज मेन इनको हुरियारे बोला जाता है। तो ये हुरियारे आते हैं गाना गाते गाते, कृष्ण जी के गाने गाते हैं, ढोलक लेके बैठे हुए नीचे, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट द प्रोसेशन। तो ये गाना गाते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, एंड देन इज व्हेन दे स्टार्ट थ्रोइंग द कलर्स ऑन ईच अदर, एंड देन एवरीबॉडी हु इज इन दिस राधा रानी टेम्पल इज जस्ट colored in the colors of Holi. It's a very beautiful feeling, it's grand, it's larger than life, it's not the kind of Holi you see in other states of India, बहुत ही बड़े ही लेवल पे खेली जाती है, so it's a little overwhelming also, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, कमर्शियल होता है, but अगर आपने अपने आप का ठीक से ध्यान रखा, if you're careful, mindful of your surrounding at all time, you will be doing nothing but just enjoying. बट इफ यू आर यू थिंक कि ये आपके लिए टू मच है, बहुत ही ओवरवेलमिंग साउंड कर रहा है, या मेरे विजुअल से भी आपको दिख रहा है, एंड इफ यू आर समबडी हु लाइक्स टू प्ले एंड यू नो बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ होली बट डोंट वांट टू गेट इनटू कलर्स, डोंट वांट टू गेट ड्रेंच्ड, देन आपके लिए भी कुछ है, आप जरूर ब्रज जा सकते हैं, बट यू कैन अवॉइड गोइंग टू द राधा रानी टेम्पल ऑल टुगेदर। डोंट गो टू नंदगांव, डोंट गो टू बरसाना, इंस्टेड गो टू वृंदावन। वृंदावन में स्पेशली इस्कॉन टेम्पल है। अब इट वुड बी रॉन्ग टू से कि वहाँ पे कलर नहीं लगेगा, क्योंकि होली के टाइम सारे दिन इफ यू आर गोइंग टू ब्रज, कलर कहीं ना कहीं से तो आता है। द एंटायर रोड्स आर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ प्रोसेशंस हैपनिंग, पीपल यू नो प्लेइंग होली ऑन द स्ट्रीट। बट इफ यू गो टू द इस्कॉन टेम्पल इन वृंदावन, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से होली खेली जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी मिलेंगे जो हरे कृष्णा हरे रामा के यू नो जाप गाते हुए आपको दिखेंगे। तो इट्स नाइस। यहाँ पे कलर्स नहीं एक दूसरे पे फेंकते, पानी नहीं होता, बट यहाँ पे अलग तरीके से होली मनाई जाती है, पर भजन गाते हैं, मंदिर में रहते हैं, लंगर लगती है। So you can stay away from the colors and still be a part of the celebration if you go to Vrindavan ka ISKCON temple, and yeah, that is quite enjoyable in itself as well. And of course, अगर आपको इस टेम्पल में भी नहीं जाना, अगर आपको रंग भी नहीं लगवाने, बट आपको आप एक फूडी हो और आपको उस तरह से यू नो इस होली का सेलिब्रेशन करना है, तो ब्रज एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाजवाब खाना मिलता है, एंड स्पेशली होली के दौरान जितने भी होली के दिन है, बाहर एंटायर सिटी में स्टॉल्स ही स्टॉल्स लगे होते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी पिक पॉइंटिंग इनटू एनी स्पेसिफिक प्लेस टू गो टू, बट आप जहाँ पे भी उस टाइम पे खाना खाओगे इज गोइंग टू बी अमेजिंग, क्योंकि होली के टाइम पे स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल डिशेज हैं जो ब्रज में बनती है। और आफ्टर दिस यू गोइंग टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ वेरी डिटेल्ड वीडियो टू टेल यू कि ये कौन सी डिशेज है जो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए व्हेन यू आर इन ब्रज, वेदर इट्स द फूड, वेदर इट्स द स्नैक्स, द स्वीट्स, द सेवरी, और इवन द भांग। Okay, so this one goes without saying and is very important. भले आप एक content creator ना हो मेरी तरह, I am very sure and I am 100% actually sure कि अगर आप ब्रज की होली देखने या सेलिब्रेट करने जा रहे हो, तो there are high chances आप एक कैमरा और एक मोबाइल फोन तो अपने साथ ले ही जाओगे। आजकल everybody does that to capture the best moments. So my suggestion to you would be कि आप घर से ही उसका ठीक से पैकेजिंग करके ले जाएं। जब आप एक इस तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे हो, it's very important that you take care of your valuables like your mobile phone, your cameras, any electronic, any expensive gadgets. There are
hundreds of reportages of mobile phones being robbed and किसी के कैमरा लेंस में कलर लग गया तो कैमरा चलना बंद हो गया। तो ऐसे जो महंगे इक्विपमेंट्स है इसको आप किस तरह से पैकेज कर सकते हैं और किस तरह से घर से ही सिक्योर करके जा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मोबाइल फोन्स के लिए आई एम श्योर यू गाइज नो कि जो वाटरप्रूफ पैकेजिंग मिलता है, यू कैन कैरी दैट, द वन दैट यू कैन स्टिल एक्सेस एंड ऑलवेज हैव इट अराउंड योर नेक, ताकि भीड़ में कोई खींच ना सके और एटलीस्ट यू नो इफ समवनस पुलिंग इट। बट कैमरा को कैसे सिक्योर किया जाए, इसके लिए कुछ पैकेजिंग का सामान है जो हमने पर्सनली एज कंटेंट क्रिएटर्स आल्सो वी यूज्ड इट ऑन ऑल ऑफ आवर DSLRs, on even our gimbals that we were carrying with the camera। तो आप अपना जो बेसिक कैमरा भी लेके जाएंगे उसको भी आप कैसे बेस्ट तरीके से पैकेज कर सकते हैं घर में ही या फिर वहां पहुंच के आपकी होटल रूम में ही। ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे ही चीजें लिंक की हुई है। दीज आर थिंग्स यू कैन गेट ऑफ Amazon, सुपर चीप प्रोडक्ट्स, बेसिक चीजें जैसे टेप वगैरह, बट देयर इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, सो प्लीज टू चेक दैट आउट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो कि कैसे आप अपने कैमरा या मोबाइल को ठीक से पैकेज करके लेके जा सकते हैं इफ यू गोना गो एंड टेक इट इनटू द होली सेलिब्रेशन। होली एक ऐसा त्योहार है, स्पेशली ब्रज की होली, जहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि इट्स वेरी इजी फॉर सम मिस्चीवियस पीपल एंड परपेट्रेटर्स टू काइंड ऑफ कैमोफ्लेज देमसेल्व्स बिहाइंड कलर्स एंड ओन अप सेइंग कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब किसी को नहीं ब्लेम कर सकते या किसी पे नहीं उंगली उठा सकते, आपको पता ही नहीं इतनी भीड़ में कौन कहाँ क्या है, इट्स बेस्ट कि यू remain very alert at all times about yourself and also about people you're traveling with. My number one suggestion would be to always travel in groups, because there's so much crowd that you have to push through the crowd to reach through different places during the celebration. So it's best कि आप groups में travel करो instead of traveling completely solo or just two people. Also make sure कि you remain in the police perimeters. तो basically ये पूरे सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन होती है during होली to keep each and every person safe. तो पुलिस basically एक रिंग बना देती है of areas that are very safe to be inside and within, क्योंकि उसके बाहर जो होते हैं या तो कंटिन्यूसली गाड़ियाँ चल रही होती है या तो फिर जब लठमार जैसी होली हो रही होती तो हुरंगों को मारा जाता है लठ से in those areas. So it's best कि you avoid getting into that. तो make sure आप इस पुलिस perimeters जो उन्होंने बनाए हैं उनके अंदर रहे और कोई ना कोई ऑफिशियल्स के आसपास ही रहे, सो दैट यू रिमेन सुपर सेफ एंड यू आर सुपर केयरफुल, क्योंकि इन केस यू नो आप फोटो लेने के लिए या कुछ देखने के लिए उस पैरामीटर्स को पास भी करके जा सकते हो एंड गॉड फॉरबिड आपका कोई आइटम चोरी हो गया तो यू विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज you are the one who's going beyond what the police has permitted you to go to. So always make sure you remain within these safe parameters. The third thing would be that always choose the rooftops. होली के दौरान यहाँ पे जितने भी लोग ब्रज में रहते हैं इन सब के छत खुले होते हैं, यू कैन इजीली एक्सेस देम। तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के बेस्ट चीज़ है कि आप छत पे चले जाओ। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू व्यू द एंटायर थिंग दैट्स हैपनिंग डाउन ऑन द ग्राउंड। ब्रज की होली एक ऐसा त्योहार है जो बहुत ही खास है, स्पेशली मेरे लिए इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, बिकॉज आई ऑनेस्टली हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड अ फेस्टिवल लार्जर देन दिस, एटलीस्ट इन इंडिया। एंड इस तरह की होली का सेलिब्रेशन वाकई में सिर्फ ब्रज में देखा जाता है, वेदर इट्स द फूड, वेदर इट्स द कल्चर, इट्स द मेंटेनेंस ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशंस, और इट्स जस्ट द लार्जर देन लाइफ सेलिब्रेशन, द एंटायर city doused in colors and playing Holi. It's just beautiful, it's amazing. So if you remain alert, if you remain safe, if you keep all of these points that I've told you in mind, you will definitely enjoy your Holi. And trust me, when you go with a very open mindset, go and experience something which you may have never experienced in life. भीड़ होती है, कमोशन होता है, बड़े सब के बीच में रंग होता है, प्यार होता है, अच्छा खाना होता है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सेलिब्रेशन भी होता है। Well, if you like this video, then don't forget to share this with your friends and share it with somebody who's planning to go to Braj Ki Holi this year so that they can keep these points in mind and thank you and thank me later. और stay tuned to the next video जिसमें जैसे मैंने आपको कहा I'm doing a detailed video about the food you should be eating when you visit Braj. Don't forget to miss that video. Subscribe to Talking Travel if you still haven't. See you in the next video. Bye.